Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, start with the new chapters or new subject is electromagnetic field, and the first chapter name is the vector analysis. So, first topic is introductions of the electromagnetic field, and then after the scalar and vector. So start, what is the electromagnetic, why we learn this subject. So this subject is basically the electromagnetics is the branch of the physics or electrical engineering which is used to study the इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फिनोमेना. यानी कि ये सब्जेक्ट हम बेसिकली ये सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ द फिजिक्स है. जैसे ही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने पढ़ा, चाहे कोई भी बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उसमें फिजिक्स में जो लॉज है वो जनरली हमने इलेक्ट्रिक की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस ओरिएंटेड देखा. जैसे कि ओम्स लॉ है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से ओम्स लॉ यूटिलाइज होता है. बट व्हेन वी कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करता हो तो वही ओम्स लॉ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, किस तरह से यूटिलाइज होगा, वो रिप्रेजेंट करता है ये सब्जेक्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन is what is the field. Field is considered the magnet. हम जानते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में फील्ड जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस सब्जेक्ट नेम इज इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर. ये जो इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक है वो किस तरह से एक दूसरे के रिलेटेड है. So it has its own effect in the regions surround it. So the effect can be expressed by the placing another magnet near the first magnet. यानी कि जैसे ही हमको सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पता है कि अगर एक में से करंट पास होता है और उसके पास में जो दूसरा फील्ड है उसके साथ जो है तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. So the effect can be expressed by placing the another magnet near the magnet, and such a effect can be defined by the particular physics functions, and in these regions we can say that the surrounding the magnetic field and there exists the particular value for the physics functions. So the field is the functions that the specified of the quantity everywhere in the region और इन द स्पेस एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन और बेस. यानी कि हमको पता है कि दो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो जो पर्टिकुलर रेंज है उसमें क्या इफ़ेक्ट होगी और उसकी वजह से जो स्पेस है यानी कि आउटर ऑफ द रीजन्स है उसमें कहाँ पे कौन सी इफ़ेक्ट होगी उस वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है. So if the field produced is due to the magnetic effect, this one is called the magnetic field. So these are the two types of electric charge, positive charge and negative charge. So such this charge is produce the field around the circuit. It is called the electric field, and the moving charge produce the current, and current carrying conductors produce the magnetic field. In this case we can consider the electric and the magnetic field are related to each other, and such a field is called the electromagnetic field. जैसे ही फ्लेमिंग्स के रूल्स के बारे में फ्लेमिंग्स और हमको पता है कि अगर कॉइल के बीच में से हम मैग्नेट मोशंस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. सो इलेक्ट्रिकल से हम मैग्नेटिक दोनों कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. So the vector analysis is the mathematical tools used to explain in the predict physical phenomena in the study of mechanism. अब वेक्टर हम आगे देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या है.
स्केलर मीन्स हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम जनरली स्केलर फॉर्म बोलते हैं. So vector is nothing but the dissipations or the symbol showing the moment or the force carrying from the point 1 or A to point B. So 2 point के बीच में जो होता है moving point वो. So the vector E vector has the property of the both the magnetic and directions, and E scalar only have the property of magnitude. यहाँ पे थोड़ा स्केलर और वेक्टर के बारे में बाइफर्केशंस किया है कि अगर ए वेक्टर फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यूज़ है वो और कौन सा डायरेक्शन है वो दोनों कंसिडर होगा. अगर वही पॉइंट हम स्केलर में कंसिडर करते हैं तो वी हैव ओनली सी इन दी वैल्यूज़. सो द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज़ टू डिस्क्राइब द वेक्टर and to explain their use and to determine their many applications, and this course also describe the several vectors operations including the dot product and cross product. Dot product और cross product क्या है हम फर्दर में देखेंगे. is nothing but one type of the mathematical representations. So there is the difference between the speed and velocity. हम जानते हैं कि speed और velocity दोनों difference है. So the speed is the example of the scalar which have the quantity that has only the magnitude. स्पीड में क्या होती है उसकी स्पीड क्या है वो मायने लगती है. तो वो एक स्केलर फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं. जब वेलोसिटी इज़ द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर्स, इट मीन्स इन द वेलोसिटी में हम उसकी क्या वैल्यू है और कौन सी डायरेक्शंस में है वो दोनों क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, इसलिए हम उसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं. सो द वेलोसिटी इज द मोर यूजफुल डिस्क्राइब ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशंस देन जस्ट द स्पीड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस इज ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो. अब हम पता है कि स्पीड कितनी है और उससे ज़्यादा स्पीड और कौन सी डायरेक्शन में है वो ज़्यादा कैलकुलेशंस में इजी रहता है. तो vector form is very useful compared to the scalar form. Now what is the scalar and vector? So the various quantity involved in the engineering of the electromagnetic field, but here we can classify the scalar and vector form. The scalar is a quantity whose value may be represented by the single real numbers which may be positive or negative. So the directions is not at all required in the explains of the scalars. So the definitions of the scalar quantity is the quantity that has only the magnetic or algebraic sign यानी कि values and positive or negative values is called the scalar quantities. So example of the scalar quantity is the mass, density, pressures and etc. So scalar quantity किस तरह से represent होगी? So if I consider the one single line, they have the two dot, starting and ending dot. अगर हम starting dot को A यानी कि start point बोलेंगे और दूसरे point को B end point होगा और वो दोनों डिस्टेंस की वैल्यूज पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी. सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्केलर फॉर्म. So these are the example: mass, then density, pressures, time, weight and etc. is the scalar examples. Now vector representations. So vector quantity in which has the both the magnitude and the specific directions in the space is called the vector. So in the electromagnetic vector defined in the 2 and 3 determination space are required, but the vector have been defined in the n dimensional space. n dimensional यानी कि जो regions है वो उसके बाहर जो infinite dimensions बोलते हैं वो. So the vector is the quantity with characterized by the both the magnitude and the directions. So definitions of the vector is
the quantity that has the magnitude and the directions is called the vector quantity. So example is the displacement, acceleration, force. कि फोर्स किस डायरेक्शंस में दे रहे हैं, एसेलरेशंस किस डायरेक्शंस में हो रहे हैं, उसकी क्या वेट है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो. सो इन द वेक्टर फॉर्म यू कैन सी द वन इज़ द एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड अनदर वेव किस डायरेक्शन में है वो मेंशंस किया हुआ है. सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द, इफ़ आई कंसिडर ए पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो एंडिंग पॉइंट है उसको मैं बी रिप्रेजेंट करता हूँ. सो हियर यू कैन सी दैट कि बोथ दिस वन एंड दिस वन आर रिप्रेजेंट द दिस वैल्यूज हैव द ए और बी. यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी का, कि ए जो वैल्यूज़ है वो ए टू बी जा रहा है और उसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि दिस वन इज़ द स्टार्टिंग, ए से स्टार्ट हुआ है बी तक एंड हुआ है, और दिस वन इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्म. सो द वैल्यूज इज़ द टेम्परेचर, वेलोसिटी, वेट, थ्रस्ट एक्सेट्रा. सो ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज दैट द स्टार्टिंग पॉइंट and the second letter is the ending point. So the representations of the vectors, जैसे हमने देखा, अगर यहाँ पे मैं O is the starting point बोल रहा हूँ और A is the terminating point यानी कि ending point, तो representations और the distance of O to A is represent this one vector of O to A and the magnitude of R. R is the also called the A to A distance. So here we can say the magnitude of the OA is equal to the R values, यानी कि distance of the starting point to ending point. So equations of the vector is the magnitude और length, कितना magnitude और length है into directions, किस directions में है. So this one is represent vector of OA, इसको हम बोलेंगे vector of OA is equal to magnitude of OA और OA, and this one is directions representations, which one is called the unit vector. A जो represent कर रहा है A, the magnitude of the vector of the AOA यानी कि distance directions दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं unit vector. So now what is the unit vectors? So unit vector has functions to indicate the directions and its magnitude is always unity. So irrespective of the directions which it is includes and the corresponding the system under the considerations. Thus for the any vectors to indicate its the directions a unit vector can be used. यानी कि अगर कोई भी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस फाइंड करना है तो हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. सो इट इज़ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड इट गिव्स ओनली द डायरेक्शंस. सो हमने जैसे आगे देखा कि O to A इज़ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. दिस वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ OA. सो हियर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शंस भी वही होगा जो हमारा O to A डायरेक्शंस यानी कि R है. सो हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स. तो हमने आज जैसे ही आगे देखा कि यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़. सो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शंस और वेक्टर ऑफ ए बी यानी कि ए और बी OA जो है और यहाँ पे हमने ए बी कंसिडर किया है. सो इसकी जो डिस्टेंस है वो और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शंस. सो हियर द ए और बी इज़ द वेक्टर यूनिट वेक्टर और यहाँ पे अगर वैल्यूज़ नहीं दी है तो ए वैल्यूज़ 1 होगी. हियर OA इज इक्वल टू R. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर्स. नाउ वेक्टर इन द टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेशंस.
अब कोऑर्डिनेशंस इज द नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द जो हमारे 3 डायमेंशनल सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड। जैसे कि हम जो एक रूम कंसीडर करते हैं और रूम के एक कॉर्नर की स्ट्रेट लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, तो सेंटर पॉइंट से हमको एक्स वाई और जेड जो रूम है उसमें एक जो कॉर्नर्स है उसको एक्स, नीचे के कॉर्नर को हम वाई और जेड कोऑर्डिनेट करेंगे, और बीच में जो स्पेस जहाँ पे हम मूवमेंट करते हैं उसको बोलेंगे स्पेस। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हम करना चाहते हैं। अगर मैं एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंसीडर करता हूँ और 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ उसमें, तो पॉइंट ई को हम वैल्यूज़ जो 3 डायमेंशनल है एक्स वाई जेड वो 1 कंसीडर करता हूँ, और सिमिलर द एंडिंग पॉइंट यानी कि बी जो है उसमें हम x2 y2 और z2 कंसीडर करता हूँ। सो both the points are given, so the vector, अगर हमने आगे देखा कि वेक्टर ए बी है ओ ए है, तो उसकी वेक्टर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करें, दोनों वैल्यूज़ दिए हैं तो उसकी वेक्टर की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करनी है वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वेक्टर ऑफ ए बी, द डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x एक्सिस का डिफरेंस वो वैल्यू मिलेगी मुझे x एक्सिस में, दिस वन इज़ दी ई एक्स डायरेक्शंस में, देन y2 माइनस y1 y डायरेक्शंस में, और z2 माइनस z1 z डायरेक्शंस में। सो दीज आर दी कॉल दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ए एंड बी। अब यहाँ पे अगर बी टू ए, बी ए दिया हुआ है वेक्टर ऑफ बी ए, तो वी कैन रिप्लेस दी x2 इन दी x1। अब क्या होगा कि बी से हम ए कंसीडर कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 फॉर द ए एक्सिस x एक्सिस, देन y1 माइनस y2 फॉर द बी एक्सिस y एक्सिस सॉरी, एंड द z1 माइनस z2 इन z एक्सिस। So the magnitude or the length of the AB is nothing but the distance of A and B, and using the distance formula, so अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओनली कंसिडर द वैल्यूज, सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। सो दीज आर द यूजफुल फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड यूनिट वेक्टर्स। जैसे ही हमने आगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखा, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सो वेक्टर ऑफ ए बी, ए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मुझे मिल जाएगा, एंड द मोड ऑफ ए बी अपॉन द मोड ऑफ ए बी, तो उससे मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी जो मैं एक्स वाई और जेड में डिवाइड कर दूँगा। सो दीज आर दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस इन द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स, यानी कि उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। So difference between the scalar and vectors. So the first one is, in the scalar they have only the magnitude and the vector have the magnitude plus directions. The example is scalar is mass, volume, pressures and etc. And the vector have the force, electric field, magnetic field, velocity, then etc. Scalar form is represented like this. They have only the 2 points and the values will be represented. This one is like also Cartesian coordinate system, but the vector values have the represent like this with the arrow or directions. Then mathematical represent, अगर स्केलर फॉर्म है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए बी कंसिडर करेंगे, बट the vector form, the mathematical representations is the vector of AB. Now अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो AB is the under root of x2 minus x1 square, y2 minus y1 square, z2 minus z1 square. yes. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है स्केलर और वेक्टर फॉर्म में, तो हमने जैसे आगे ये देखा कि ए जो है वो हम वेक्टर फॉर्म टू स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस यूजिंग ऑफ दिस।
देन द ऑपरेशंस विद द डेल, आगे आएगा पूरा चैप्टर। सो उसका रिप्रेजेंटेशंस है ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई। और यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस थियरी यूज़ करते हैं तो वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू डेल ऑफ वेक्टर ए एंड द कर्ल की बात करें तो डेल क्रॉस ए। अब यहाँ पे जो डॉट है इज द डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो है क्रॉस किया हुआ है दिस वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। सो today's we can see that why we learn this subject, what is the electric field, magnetic field, what is the difference between them, then after scalar and vector form, how to represent the unit vectors, and what is the difference between scalar and vectors. So if any questions regarding this topic you can call me. If any questions regarding this topic, query regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is seen on your screen. Thank you.